Hello everyone, welcome back to the video series for class 10th Information Technology, and we are discussing the part A, that is employability skill. And in this video we are going to discuss about writing skills. Okay, so already we have discussed about communication skill. In this video we are going to discuss about basic writing skills. So when we are talking about writing skills, so students use the grammar skills learned in their regular English classes to better their written communication skills. तो ऑलरेडी ये आप जब इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको ये सारी चीज़ों का पता है ऑलरेडी. यहाँ पे आपको कुछ अलग से नहीं बताना है. फिर भी वी आर नॉट गोइंग टू कवर दिस थिंग्स इन डिटेल्स, बट वी विल कवर द बेसिक राइटिंग स्किल्स. सो फर्स्ट we will discuss about what is sentence. Okay, so a sentence is a group of words giving a complete thought. It must contain a subject and a verb. तो जब हम बात करते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो एक सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. जैसे आई एम आउट ऑफ पेपर फॉर द प्रिंटर. ठीक है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक यहाँ पे कंप्लीट थॉट है. ठीक है, लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होता है कि इट अलाउज अस टू शेयर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय कंबाइनिंग टू और मोर रिलेटेड थॉट्स इनटू वन सेंटेंस. अब इसके ऊपर सिंपल सेंटेंस में एक ही थॉट होता है, लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट में एक से ज्यादा थॉट्स हो सकते हैं जिसको हमने सिंगल स्टेटमेंट में डाल रखा हो. जैसे अगर आप बात करो कि आई ड्रोव टू द ऑफिस एंड देन आई वॉक टू द कैबिन. मैं ऑफिस तक गया, उसके बाद मैं वहां अपने कैबिन तक चल के गया. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजों को हम, दो सेंटेंस को हम यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं. देयर आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जहाँ पे we are combining one independent clause with at least one dependent clause. मतलब एक independent clause पे दूसरा clause depend हो रहा है. जैसे although Rohan had some doubts, he found the courses very useful. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि one part is dependent on another part. Computers have come a long way since they first came on the market. Okay, so these are some of the examples of simple sentence, compound sentence and your complex sentence. Moving to the next one, phrases. जब हम बात करते हैं phrases क्या होती है, तो these are the group of words that work together to communicate an element of speech. Next one is parts of sentence. Every sentence can be broken into two parts. Okay, the first one is complete subject and another is complete predicate. The complete subject consists of a simple subject, the noun or the pronoun in the subject. Okay, and the complete predicate is made up of verb and it modifier. जैसे अभी अभी हमने बात किया कि simple सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंप्लीट प्रेडिकेट. नाउ वी आर हैविंग सम पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, so all of you must know about this part of speech. We should not discuss in very much details. There are parts of speech with examples. We are having noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunctions, interjections, and here you can see examples also. ठीक है, so there are basically 8 parts of speech if we are talking about parts of speech, and you know very much in details about all these things in your English subject. You must have learned about these things, so no need to discuss about this English topic in very much detail. We will discuss the other skills. Okay, so article writing. Article writing is a process of creating a non-fiction text about current or recent news, items of general interest or specific topics. So you may have practiced for writing article. So these are one of the format of writing article. Means your article must have your introduction of the topic, cause of the topic, statistics of the topic, advantages, disadvantages of the topic, and conclusion of the topic. Okay, so this is the format of writing an article. Next, construction of a paragraph.
So paragraph is a series of sentences that are organized and coherent and are all related to a single topic. कभी कभी आपके इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में रहता भी है क्वेश्चन कि यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ और समथिंग लाइक दैट. तो अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो इसमें भी ये जो फॉर्मेट होगा, फर्स्ट टॉपिक शुड बी देयर, देन सपोर्टिंग डिटेल्स शुड बी देयर, देन कलरफुल वोकैबुलरी टू अट्रैक्ट paragraph, and then your concluding sentence at the bottom of your paragraph should be there. Then coming to the next important skill, that is self management skill. जब हम बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल की तो द वेरी फर्स्ट थिंग विच कम्स इन आवर माइंड इज स्ट्रेस. So it is one of the important reasons of low productivity in all stages of life. स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे प्रोडक्टिविटी को कम हमेशा कर देती है. स्ट्रेस ड्रेन वंस एनर्जी एंड इम्पीड्स द डे टू डे वर्क एंड पीस ऑफ माइंड. बट स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव. अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है इफ इट इज टेकन इन राइट सेंस. ओके, नाउ व्हाट डज इट मीन्स? सो अगर हम अपने स्ट्रेस को राइट सेंस में लेते हैं विच मे हेल्प इन अचीविंग इफेक्टिव आउटकम्स, बट द मोस्ट कॉमन इज नेगेटिव स्ट्रेस. हमने कभी ये नहीं सुना होगा कि मुझे पॉजिटिव स्ट्रेस आ रहे हैं. मोस्टली हमने नेगेटिव स्ट्रेस के बारे में ही सुना है जो कि हम सब के प्रोडक्टिविटी को कम करता जाता है. ओके, तो let us see what is the meaning of stress management. So stress management refers to focusing human efforts for maintaining healthy body and mind capable of better withstanding stressful situations. Okay, तो स्ट्रेस हमें मिलता कहाँ से? कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जहाँ से हमें स्ट्रेस मिलता है? हमें मेंटल स्ट्रेस मिलता है, हमें फिजिकल स्ट्रेस मिलता है, हमें सोशल स्ट्रेस मिलता है, हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस मिलता है. अगर हम बात करते हैं मेंटल स्ट्रेस की, तो स्टूडेंट्स कैन बी लेफ्ट ओवरवेल्म्ड इफ दे आर अनेबल टू हैंडल देयर असाइनमेंट, सबमिशन डेडलाइंस एंड एग्जामिनेशन ग्रेड्स. आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है जब आपके एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किया जाए लेकिन आप उसको अचीव नहीं कर सकते हैं, तब हमें मेंटल स्ट्रेस होता है. फिजिकल स्ट्रेस होता है जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कभी हमें लुक्स के लिए, कभी हमें दूसरी चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो वो हमारा फिजिकल स्ट्रेस हो जाता है. नेक्स्ट सोशल स्ट्रेस भी होता है. इट इज़ डिस्कॉर्ड अमॉन्ग्स फैमिली मेम्बर्स, पीयर प्रेशर फॉर डूइंग थिंग्स विच चिल्ड्रन वुड जनरली अवॉइड, maintaining balance in relationships among friends, status show off may lead to stress at times. आजकल बच्चे स्टेटस को एक बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं. ठीक है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो ये भी एक सोशल स्ट्रेस की कैटेगरी है. नेक्स्ट फाइनेंशियल स्ट्रेस. अगेन यंगस्टर्स में हैव एस्पिरेशनल फाइनेंशियल स्ट्रेस. ठीक है, कि हमें इतना पैसा इनकम करना है, तो ये सारे फाइनेंशियल रिलेटेड स्ट्रेस होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो अगर हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं तो ये हमारे मूड को इम्प्रूव करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, इट प्रोमोट्स लॉन्गेविटी, इट लेट्स टू बर्स्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ. ये हमारा कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट रखता है. हम जो भी टास्क करना चाहते हैं उसमें हमारी पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर हमें स्ट्रेस नहीं हो. ये हमारी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है. ये हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को भी रोकता है. तो अगर हम बात करते हैं अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, क्या क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. पहले तो हम स्टेप्स देख लें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टेप्स क्या क्या है. पहला, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड. सबसे पहले हमें देखना है कि क्या हमारे अंदर कोई साइंस या सिग्नल्स हैं जो स्ट्रेस के हैं. क्या हमें हेडेक होता है, स्लीपलेसनेस होता है, सैडनेस होता है, एक्सेसिव वरिंग, नर्वसनेस, दीज आर द सिग्नल्स. ठीक है. सेकेंड है आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग योर स्ट्रेस. दूसरा है कि आपको पता करना है कि स्ट्रेस किस बात से हो रही है. ठीक है, यू फाइंड आउट द रीजन फॉर योर स्ट्रेस. एंड थर्ड, देन यू हैव टू अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स.
आपको पता चल गया कि आपके पास स्ट्रेस के कुछ सिग्नल्स हैं, इसके कॉज क्या है, रीज़न क्या है, तभी आप स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब वो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। पहला, एक्सरसाइज, कीप योरसेल्फ बिजी। ठीक है, ये फिजिकल एक्सरसाइज आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, वॉकिंग में कर सकते हो, स्किपिंग में कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज आप कर सकते हो जो आपके मूड को स्टेबलाइज करके रखता है। ओके, इट इम्प्रूव्स योर सेल्फ स्टीम एंड इट इंड्यूसेस स्लीप। Then yoga, very effective. Okay, it includes a series of postures and breathing exercises practiced to achieve control of body and mind. Meditation. Okay, it is a practice where an individual is supposed to focus his or her mind on a particular object. Then enjoying. Enjoy your vacations with your friends and families. Okay. Then taking nature walk. So be in contact with environment. It also helps to boost up your mood. Okay, so this was about the stress management techniques, and next we will discuss what is self management skills. This will tell you the ability to work independently. Okay, so dear students, everyone who has been sent on this earth has been blessed in their own way. जितने भी लोग हमारे यहाँ आसपास हैं, इस पृथ्वी पे हैं, सब किसी न किसी तरीके से blessed हैं. They together make this earth a beautiful place. Okay, some can sing well, others can good at sports, some are intellectuals and some are good comedians. Everyone is special. Okay, but it is important that everyone learns the art of working independently. सभी किसी न किसी तरह से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, लेकिन हम सबके पास एक आर्ट होना चाहिए कि हम इंडिपेंडेंटली काम कैसे करें. It means that one must learn to take ownership of the task assigned and leave no stone unturned in accomplishing the task. The individual who has the ability to work independently need not to be supervised for the task completion. Okay? So, the capacity to work on your own is an important asset, and this will lead you ability to work independently. So, working independently is the absence of any outside influence can be extremely beneficial for an individual. As the passion for achieving something of your own can pave your path to success and can boost your confidence. अगर हम इंडिपेंडेंटली कोई काम करते हैं तो हमें कितनी सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी लर्निंग बढ़ती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, सेटिस्फैक्शन हमें एक मिलता है. बीइंग इंडिपेंडेंट टीचेस यू हाउ टू बी सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड. To become self-management individual, one should not depend on others for guidance, instead take initiatives of his own. An independent individual can manage his time well and become a potential leader. So basically, an independent person is aware of his feelings and character, observes and evaluates his behavior and corrects his mistake. ठीक है? So this is just a quote. So what are the advantages of working independently? अगर हम बात करते हैं तो advantages बहुत सारे हैं. It boosts your self confidence. It makes the person self reliant. खुद पे भरोसा रखना सिखाता है, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं हम. ठीक है. It makes the person emotional independent. हम किसी और की बातों से इमोशनली डाउन नहीं होते, इमोशनली ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं, हम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. इट मेक्स डिसीजन मेकिंग एन ईजी टास्क. कोई भी डिसीजन लेने से हम पीछे घबराते नहीं हैं. इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन द पर्सन. ओके, इट इंक्रीज सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ स्टीम. तो ये सारे, इट मेक्स द पर्सन सेल्फ अकाउंटेबल. देन व्हाट आर द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू वर्क इंडिपेंडेंटली. अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट काम करने के इतने सारे फ़ायदे होते हैं, हमें इसलिए करना चाहिए, ये सारे कैरेक्टर्स हमें डेवलप होते हैं, तो फिर कौन से वो स्किल्स हैं
जो इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। सो पहला, सेल्फ मोटिवेशन। ओके, पहले हमें गोल बनाना है, फिर प्लान बनाना है, उसके बाद उस प्लान में हमें बिल्कुल लग जाना है एंड वी हैव टू स्टिक टू आवर प्लान एंड देन वी कैन रीच आवर गोल। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, देन मल्टीटास्किंग एबिलिटी। ऐसा नहीं कि हम एक ही काम पकड़ के बैठेंगे, अगर दूसरे काम के लिए हम दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो फिर कैसे होगा, तो हमें मल्टीटास्किंग एबिलिटी आनी चाहिए। देन डिसिप्लिन, ओके, डिसिप्लिन मस्ट बी देयर। Okay, and then communication skill, it is very obvious, this is the first unit of this particular chapter. So these are the skills which are needed for working independently. Resourcefulness, okay. Then how to become self reliant, okay, खुद पे हम कैसे डिपेंड रह सकते हैं दूसरों पे नहीं रहने के बजाय। तो फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस इज नीडेड। हमें अपने बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हैविंग कंसियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ, हम में क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी क्या पोटेंशियल है, ठीक है, हम में क्या स्किल है, हमारी क्या फीलिंग्स है, हमारा क्या नॉलेज है, हमारा क्या स्ट्रेंथ है, हमारा क्या वीकनेस है, ये सारी चीज़ों का पता हमें होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। ओके, वी मस्ट नो आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगर हम क्रिएटिव राइटिंग में अच्छे हैं, हम बोलने में अच्छे हैं, हम गिटार अच्छा बजा लेते हैं, ये सारे हमारे स्ट्रेंथ हैं। वीकनेस भी कुछ हो सकते हैं, हम इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स या गेम में नहीं अच्छे हैं। सो वी मस्ट नो आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। देयर आर टाइप्स ऑफ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस, इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। ओके, सो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस मतलब this type of awareness requires understanding how other people perceive us. External self awareness मतलब दूसरे लोग हमें कैसे जानते हैं, ठीक है। While giving a presentation or talking to a group of friends, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या perceive कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं external self awareness. But internal self awareness मतलब it represents how we see our values, passion, aspirations, thoughts, feelings, behaviors, strengths, weakness and the other things, ठीक है। मान लो अगर हम वाइवा अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम नर्वस हो जा रहे हैं, तो ये हमारा खुद का सेल्फ अवेयरनेस है। ओके, सो टू बिकम मोर सेल्फ अवेयर वी मस्ट आस्क आवर सेल्फ दीज 3 क्वेश्चंस एवरी डे। व्हाट वेंट वेल टुडे, व्हाट डिड नॉट गो सो वेल, हाउ कैन आई स्मार्टर टुमारो। अगर आपको अपने बारे में जानना है तो ये 3 सवाल आपको पूछना होगा कि आज सब कुछ कैसा था, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, और कल के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं। ओके, सो सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हैव एन इनर अर्ज टू डू समथिंग। आपको खुद को ही मोटिवेट करना है, आपको खुद को ही अप्रिशिएट करना है, ठीक है। कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल अवार्ड या अप्रिसिएशन के लिए नहीं, आपको खुद को ही मोटिवेट करना है to do something to achieve your goal without any external pressure or in lure of or award or appreciation. Be the best version of yourself. So what are the skills that are involved in self motivation? खुद को मोटिवेट करने के लिए कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है? सेट हाई बट रियलिस्टिक गोल्स। हाई गोल्स रखो बट रियलिस्टिक रखो। ऐसा गोल हमें नहीं रखना जिसको हम कभी अचीव ही नहीं कर सकते हैं। टेकिंग एन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क। गोल को अचीव करने के लिए सभी को थोड़ा बहुत रिस्क लेना होता है, बट इट शुड बी एप्रोप्रिएट। लुकिंग फॉर कॉन्स्टेंट फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। जैसे कि हमने बताया था कि फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक स्टेजेस पे। बीइंग कमिटेड टू पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यूटिलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज मिले मतलब यू हैव टू ग्रैब इट। कंटिन्यूइंग टू परस्यू गोल्स डिस्पाइट सेटबैक्स। आपको गोल्स को अचीव करने की कोशिश हमेशा ही करती रहनी होगी। छोटे मोटे फेलियर से आपको चुपचाप पीछे हटके नहीं बैठना है। नाउ already we have discussed that what is self motivation, so it pushes you to achieve your goals.
देर आर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसा हमने कहा है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब किसी अवार्ड के लालच में, किसी प्राइज मनी के लालच में आपको कोई काम नहीं करना है। आपके अंदर से ये मोटिवेशन आनी चाहिए कि आप अपनी खुशी के लिए कोई काम करो। ठीक है। नाउ सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मीन्स it guides independent individuals and it helps them consider long-term consequences rather than just transient feelings. Okay, so there must be self-regulation। हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सके, हम अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर सके। ये सारी चीज़ें ही सेल्फ रेगुलेशन के अंदर आती हैं। हम किस तरह से अपने लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है, और हम अपना फ्यूचर कैसे चाहते हैं, ये सारी ही चीज़ें हम तब कर सकते हैं जब हमने खुद को रेगुलेट कर रखा हो। तो हाउ वी कैन सेट गोल्स। गोल्स को सेट करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड स्मार्ट। S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for realistic and T stands for time bound। स्पेसिफिक होना चाहिए आपका गोल। ठीक है, क्या करना होगा हमें ये गोल को अचीव करने में। मेजरेबल। मेजरेबल मतलब हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ डू यू नो दैट आई हैव अचीव रिजल्ट। ठीक है, अगर आप कह दोगे कि आई वॉन्ट टू बी रिच, कितना अमीर बनना है, कितना मतलब अभी जितना हो उससे 2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा, मतलब आपको एक मेजरेबल क्वांटिटी रखनी है। अचीवेबल, आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा अब गोल अचीवेबल होना चाहिए मतलब बहुत बड़े गोल को आपको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको पहले क्लास 12 अच्छे से पास करना होगा, उसके बाद आपको हायर स्टेजेस अच्छे से क्लियर करनी होंगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको अपने गोल को डिवाइड करना होगा। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक गोल जो होगा, जैसे कि अगर आप सोचोगे कि मुझे आज ही पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर लेना है, ये अपने आज का गोल बनाया है, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है, इट इज इम्पॉसिबल। हाँ, अगर आप ये गोल बनाओगे कि आज मुझे ये एक चैप्टर खत्म करना है या 3 घंटे में मुझे इतना पोर्शन खत्म करना है, तो ओके, दैट विल बी योर रियलिस्टिक गोल। टाइम बाउंड। ठीक है, टाइम बाउंड गोल जरूर होना चाहिए, मतलब आपको इतने टाइम में इतना अचीव करना है, दैट शुड बी देयर। ओके, आप अगर बोलोगे कि मैं ये सिलेबस खत्म कर लूंगा, खत्म कर लूंगा मतलब कभी ना कभी से तो खत्म करने से कोई मतलब नहीं है ना, आपको विद इन अ टाइम पीरियड इतना पोर्शन फिनिश करना है। तो गोल सेट करने के लिए ये स्मार्ट वर्ड को आपको यूज करना है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ओके, so this was all about this skill. I hope you have enjoyed learning. If you find this video useful, then don't forget to like it, share it and subscribe it. Thank you for watching.